affirms that Jammu and Kashmir dispute is not an internal matter of India, but a global issue requiring a just resolution in accordance with UNSC resolutions, and the calls upon the international community to stand for justice, not silence, in the face of Indian oppression and human rights abuses in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Reiterates that Pakistan will never compromise on the right of the Kashmiri people of self-determination as guaranteed under international law and UN resolutions. Affirms that Pakistan's moral, political and diplomatic support for the Kashmiri people remains unshakable and enduring. Acknowledges that Kashmir is the unfinished agenda of the partition of the Indian subcontinent, and this House commits to continue raising the Kashmir issue at every regional and international forum. Condemns all forms of Indian state violence and coercive tactics aimed at erasing the identity, culture and political aspirations of the Kashmiri people, which have failed and will continue to fail. Observes 5th August as a black day that marks the beginning of an illegal siege, gross human rights violations, and the denial of fundamental freedoms to the people of Indian-occupied Jammu and Kashmir. Rejects India's attempts at demographic engineering and political persecution in the region, which violate the Geneva Conventions and all norms of international conduct. Demands that India be held accountable for the systematic human rights abuses being committed in Indian-occupied Jammu and Kashmir, including arbitrary detentions, torture, media blackouts, and collective punishment. Declares that silencing the voices of Kashmiris through force, censorship, and occupation cannot be defined as peace. It is tyranny. Asserts that peace and stability in South Asia are impossible without the just and final resolution of the Jammu and Kashmir dispute. Urges the international community, especially the United Nations, to break its silence and fulfill its long-standing promise to the people of Kashmir. Demands that immediate implementation of all relevant UN Security Council resolutions which call for a free and impartial plebiscite in Jammu and Kashmir. Insists that the people of Jammu and Kashmir must be allowed to determine their own future freely, fairly, and under the supervision of the United Nations. Affirms that while laws can be changed and imposed, the will of a people cannot be revoked by decree or force. Declares that from Srinagar to Islamabad, the heart beats as one for the freedom and dignity of Kashmir. Recognizes that 5 August is not merely a date in history, it is a continuing reminder of the need for global conscience and moral clarity on Kashmir. Resolves that Kashmiris have not surrendered, neither will Pakistan, in its principled support for their cause. Thank you, sir. आपने बड़ी सख्त बात कर दी। मैं अपने आप को कटहरे में लेके गया था, पेश करने से पहले भी और पेश करने के बाद भी। असद कैसर साहब ने कहा था, मेरे भाई हैं, कि आप इसके बाद किसी बार का रुख करके देखिएगा। मुझे तो बार्स में जाता, बार्स को मजबूत किया गया है, उनकी नुमाइंदगी जो है वो आईनी तौर पे तस्लीम की गई है। कलेक्टिव विजडम के साथ बैठ के आप फैसले करते हैं। आज जो बैकलॉग था पिछले साल की निस्बत सर वो नीचे आया है। मैं पहले भी ये बात कहता हूं कि हम ये सारी चीज़ें अगर बैठ के तय करें, सर 10-10 साल मुकदमात के फैसले नहीं होते। फौजदारी सजाए मौत का कैदी 11-12 साल डेथ सेल में रहता है सर, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए। सिविल मुकदमात 30-30 साल जो हैं वो डिसाइड नहीं होते, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए। हमने क्या कहा है कि जो सियासी टिकट है, जो पॉलिटिकल केसेस हैं, जिनके सियासी एंगल्स हैं, जो आइन से जुड़े हुए सवालात हैं, जो यूँ कह दीजिए कि इस लेवल के केसेस हैं, जो गरीब आदमी का केस नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन जो उसकी है वो सुन ले। बाकी केसेस जो सिविल और फौजदारी हैं वो रूटीन के मुताबिक चलते रहे। और हुआ क्या, आइनी बेंच बना, उसके तमाम जजेस सुबह 9 से 11 बजे तक अपना रेगुलर काम करते हैं। 11:30 ब्रेक के बाद जो 184(3) के या जिसे हम पॉलिटिकल केसेस कहते हैं वो उनमें बैठते हैं, वो डे टू डे हेयरिंग्स करते हैं, बाकी कोर्ट चलती रहती है। मुझे तो सर किसी ने नहीं पकड़ के कहा कि जी इसकी वजह से ये नुकसान हो गया इदारे का। उसके बावजूद अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप समझते हैं कि इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती थी, निज़ाम इंसाफ की फराहमी को मज़ीद शफाफ किया जा सकता है,
तो फिर अपने सियासी इख्तलाफात छोड़ दे कि मेरे इस केस में क्या हुआ है, छोड़ दे कि मेरे साथ यानी कि आज से 5 साल पहले क्या हुआ है। आए बैठते हैं, मिल बैठ के, बल्कि मैं आप सब की मौजूदगी में 108 तरामीम हैं ज़ाब्ता फौजदारी में। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तकरीबन कोलैप्स कर गया। खोसा साहब बैठे हुए हैं, ये हम गुजारा ही कर रहे हैं, अदालतों में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चर है वही बैठ गया है। जब 8-8 साल मैजिस्ट्रियल ट्रायल के कंक्लूजन का चांस खत्म हो गया, सेशन ट्रायल 6-6 साल चलते हैं। 108 तरामीम का एक मुसवदा लॉ एंड जस्टिस की कमेटी में पड़ा हुआ है। आए सारे मिल बैठ के उसको एग्जामिन करें दयानतदारी के साथ। उसमें तो कोई सियासत नहीं है ना, उसमें तो बल्कि लोगों के लिए आसानी की गई है। ज़मानतों के कानून को बेहतर बनाया गया है, रिमांड के जो फीचर्स हैं उसको बेहतर किया गया है, झूठी FIRओं को रोकने के लिए मैकेनिज्म दिया गया। वो तो आपका और हमारा इख्तियार है ना, ये आयल के इस तरफ क्या और इस तरफ क्या। आए वहाँ से शुरू करते हैं ताकि आम आदमी तक इसके समरात पहुँचे। हम पहले भी तैयार थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक हम आज भी तैयार हैं। लेकिन सर माहौल की इस गर्मी में, मैंने कल भी अर्ज़ किया था, मुझे तो सर किसी ने नहीं पकड़ के कहा कि जिसकी वजह से ये नुकसान हो गया इदारे का। उसके बावजूद अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप समझते हैं कि इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती थी, निज़ाम इंसाफ की फराहमी को मज़ीद शफाफ किया जा सकता है, तो फिर अपने सियासी इख्तलाफात छोड़ दे कि मेरे इस केस में क्या हुआ है, छोड़ दे कि मेरे साथ यानी कि आज से 5 साल पहले क्या हुआ है। आए बैठते हैं, मिल बैठ के, बल्कि मैं आप सब की मौजूदगी में 108 तरामीम हैं ज़ाब्ता फौजदारी में। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तकरीबन कोलैप्स कर गया। खोसा साहब बैठे हुए हैं, ये हम गुजारा ही कर रहे हैं, अदालतों में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चर है वही बैठ गया है। जब 8-8 साल मैजिस्ट्रियल ट्रायल के कंक्लूजन का चांस खत्म हो गया, सेशन ट्रायल 6-6 साल चलते हैं। 108 तरामीम का एक मुसवदा लॉ एंड जस्टिस की कमेटी में पड़ा हुआ है। आए सारे मिल बैठ के उसको एग्जामिन करें दयानतदारी के साथ। उसमें तो कोई सियासत नहीं है ना, उसमें तो बल्कि लोगों के लिए आसानी की गई है। ज़मानतों के कानून को बेहतर बनाया गया है, रिमांड के जो फीचर्स हैं उसको बेहतर किया गया है, झूठी FIRओं को रोकने के लिए मैकेनिज्म दिया गया। वो तो आपका और हमारा इख्तियार है ना, ये आयल के इस तरफ क्या और इस तरफ क्या। आए वहाँ से शुरू करते हैं ताकि आम आदमी तक इसके समरात पहुँचे। हम पहले भी तैयार थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक हम आज भी तैयार हैं। लेकिन सर माहौल की इस गर्मी में, मैंने कल भी अर्ज़ किया था, झूठी FIRओं को रोकने के लिए मैकेनिज्म दिया गया। वो तो आपका और हमारा इख्तियार है ना, ये आयल के इस तरफ क्या और इस तरफ क्या। आए वहाँ से शुरू करते हैं ताकि आम आदमी तक इसके समरात पहुँचे। हम पहले भी तैयार थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक हम आज भी तैयार हैं। लेकिन सर माहौल की इस गर्मी में, मैंने कल भी अर्ज़ किया था, डॉक्यूमेंट्स फाड़ने से मसले हल नहीं होते। सियासतदान की तरबियत ही डायलॉग है। आए इस डायलॉग के लिए बैठे, सर जोड़ के बैठे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। जहाँ पे नीयत अच्छी हो वहाँ पे रास्ते निकल आते हैं। बहुत शुक्रिया।